السلام علیکم. لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. رازی حیات مہک خانم قسط نمبر 18. صبح کی روشنی شبنم جیسی خنکی لیے ہوئے تھی. دھیرے دھیرے کمرے میں اتر رہی تھی، جیسے کسی ہولے مزاج مہربان نے کمرے کی سانسوں میں لمس کھول دیا. پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے اور ہوا میں کسی قیمتی عطر کی مہک تیر رہی تھی. اس کی آنکھیں چند پر صدیوں کی نیند کا بوجھ تھا. ہلکی سی جنبش کے ساتھ لرزیں. ان پلکوں پر جیسے درد اور تھکن کا بوجھ تھا، مانو آنکھیں کسی اندھیرے غار سے دھیرے دھیرے روشنی کی طرف آ رہی تھیں. پہلے صرف روشنی کی ایک مدھم دھار دکھائی دی، جسے ایک کرن نے پلکوں سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت مانگی ہو. پھر آنکھیں کچھ اور کھلی تو منظر دھندلا سا لگا. روشنی، سفیدی، گداز سا بدن، بستر اور چمکتی ہوا، لیکن دماغ ابھی بھی سن تھا. جسم کسی اور ہی جہاں سے لوٹا تھا، اور دل، وہ تو ابھی بھی خوف کے پاتال میں قید تھا. اسے تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی، جیسے کمر میں جان نہ ہو، لیکن اسی لمحے بستر پر ہاتھ ٹکا کر اٹھتے ہی ایک ہلکا سا درد سینے سے اٹھا اور جسم میں پھیل گیا، اور وہ تڑپ کر گری. اس کی کرا مدھم تھی جیسے کسی نے صدیوں بعد لب کھولے ہوں. سانس پھولی ہوئی، آنکھیں پوری طرح کھلی تھی اور ان میں حیرت، خوف، الجھن اور یادداشت کا سیلاب بھر رہا تھا. یہ کہاں ہوں میں؟ سفید دبیز پردے ہوا سے اٹھ رہے تھے. سامنے کی دیوار پر ایک قیمتی پینٹنگ تھی. کمرہ سجا ہوا تھا جیسے کسی بادشاہ کا ہو، مگر دل کی دھڑکن چیخ رہی تھی. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جیسے کسی موت سے واپس لوٹی رہی روح تھی، جسے یاد آ رہا ہو کہ میں نے خود کو موت کے حوالے کیا تھا، پھر بھی زندہ تھی. وہ ہانپتی ہوئی پسینے سے بھیگتی اپنے آس پاس دیکھنے لگی. ایک طرف ڈریسنگ، دوسری طرف کھڑکی، تیسری طرف کرسی پر رکھے دوائیں، اور اپنے ہاتھ پر نظر پڑتے وہ چونک گئی. سفید پٹیاں، کینولا، نیلی رگیں. تو میں مری نہیں؟ اس کی سانسیں پھولنے لگی. دماغ نے انکار کیا، دل نے ماننے سے انکار کیا. کیا یہ سب خواب تھا، یا کیا یہ خواب ہے؟ پھر جیسے پوری یادداشت واپس آئی. تہہ خانے کی سرانڈ، جنگل کی سرسراہٹ، شموں کی خاموشی، جہاں کا کہکا اور وہ خوفناک کھائیاں جہاں اس نے خود کو گرا دیا تھا. میں تو مر چکی تھی، وہ چلائی کانپتے ہونٹوں سے لرزتی آواز میں. تو پھر میں یہ کہاں ہوں؟ میں تو مر چکی تھی نا. اس کی چیخیں پاگلوں جیسی تھی. کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے، پھر یہ سب کیوں؟ اچانک دروازہ کھلا. وہ سہم کر پیچھے سے رک گئی. دروازے میں کھڑا شخص گرے پینٹ شرٹ میں ملبوس، گرے بالوں کو سیٹ کیے، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود جاذب نظر تھا. 60 سے اوپر کی عمر، مگر ایک پل کی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی معمولی نہیں. وہ دھیرے دھیرے چلتا آیا، سگار نکالا، سلگایا اور ہوا میں دھواں چھوڑ کر بولا، کام کرو گی میرے لیے؟ سیدھی، خشک، فیصلہ کن پیشکش. فاطمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا. اس کی زبان پر کفل تھا، پر دماغ سوالوں سے بھر گیا. حیران مت ہو، تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں. جہلم کے دریا کے کنارے ملی تھی 1 سال پہلے. کوما میں تھی تم، اور اب تم روم میں ہو، میرے گھر میں. روم، یہ لفظ اس کے وجود پر کفل بن گیا. تو وہ کیا 1 سال سے مرنے اور جینے کے بیچ کسی خلا میں قید تھی؟ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا. چہرہ سرد، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، ہونٹوں پر زندگی کی نمی نہیں، اور ایک زندہ لاش، لیکن سانسیں اب بھی ساتھ تھیں. میرے لیے کام کرو گی تو اپنے گھر والوں کی موت کا بدلہ لے سکو گی. وہ مرد اب اور قریب آیا، اس کی طرف جھکا اور گویا ہوا. بس یہی ایک جملہ تھا. وہ جملہ نہیں، چنگاری تھی. فاطمہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی جھلکی. ہونٹوں نے کچھ نہیں کہا، پر گردن ہل گئی. کیوں ہی فاطمہ نہ رہی، وہ کرسٹل کوئین بن گئی. جونس روبو نے اپنی اسے پناہ دی، تربیت دی اور پھر مافیا کی دنیا میں ایک نئی شکل میں پیش کیا. مارشل آرٹس، اسلحے کا استعمال، نفسیاتی کنٹرول، معلوماتی جنگ کی تربیت. وہ سب کچھ جو ایک قاتل، ایک حکمت عملی ساز اور ایک محافظ کو درکار ہوتا ہے. پھر ایک دن اسے گلی کی کچرے کے ڈھیر پر ایک بچہ ملا، کمزور، دھتکارا ہوا، شاید کسی کے گناہ کا ثبوت. 11 سالہ اس بچے میں اسے اپنی شبیہ نظر آئی. وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی، اور جونس روبو نے اسے منع نہیں کیا. اس بچے کی آنکھیں ہو چاندنی جیسے تھیں. حرم کو اس کی ماں جیسی محبت ہو گئی تھی. اس کو کوئی نام نہیں تھا. کوئی اسے چھوٹو کہتا تو کوئی منا، لیکن اس کا نام جاذب داؤد مرزا، اپنے باپ کا نام وہ اسے دیتی، اور خود اس کی ماں بن گئی تھی. یوں ہی وقت گزرا اور وہ 20 سال کی ہوئی تو جونس بیمار رہنے لگا. اس لیے آہستہ آہستہ مافیا کی دوڑ اس کے ہاتھ میں آنے لگی. جونس کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں تھا. اس کی گینگ میں بھی بس معمولی سی ہی تھی.
इसकी कोई अपनी औलाद ना थी और बीवी 15 साल पहले मर चुकी थी। चंद माह बाद ही जोन्स की मौत हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आई है, बस इतना पता था कि उसे ट्रेनिंग जोन्स रोबो ने दी है। गुजरे दिनों में उसे एक लड़का मिला जो तकरीबन उससे 1 साल बड़ा था, जिसका नाम जिब्रान था। उसके साथ भी धोखा हुआ था और उसकी फैमिली भी बदले की आग में ख़त्म कर दी गई थी। रफ्ता रफ्ता इनकी गैंग मजबूत होती गई। फिर उसे मालूम हुआ कि इसकी बहन जिंदा है और ब्लडी पॉइजन के कब्जे में है। वो चाहती थी कि फ़ौरन उससे छुड़ा ले, लेकिन उसे जोन्स की नसीहत याद आई। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, इन पर हाथ डालना आसान नहीं। इससे 1 से 1.5 साल में उसने कई लोगों के खून से अपने हाथ रंगे, लेकिन मारते वक्त इसके हाथ ज़रा नहीं काँपे थे। पर वो किसी बेगुनाह को नहीं मारती थी, ये इसका असूल था। असल धाक उसकी माफिया में तब बैठी जब उसने माफिया के मेन लीडर रेम्बो को पूरी टीम के सामने एक झटके से मार डाला। अरे ये कौन है? उसकी सेहत से लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। चल ये ले, मुझे मार कर दिखा। रेम्बो ने इसका मजाक उड़ाते हुए उसके सामने गन फेंकी और तंजिया कहा। वहाँ मौजूद सब लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने लम्हा न लगाया। गंद उठाई और सीधे उसकी कनपट्टी पर गोली चला दी। कमरे में सकूत छा गया। रेम्बो फटी फटी आंखों के साथ ज़मीन बोस हो चुका था और उसी दिन उसे माफिया की मलका कहा जाने लगा। 26 साल की उम्र में उसने माफिया में ख़ुद को मनवा लिया था। जैक इसका ख़ास आदमी था। वो इसे अपनी बहनों की तरह बात करता था, जिस पर उसने कभी उसे नहीं टोका। उसके गाल पर मौजूद निशान का उसने कभी इलाज करवाया ही नहीं था। वो निशान उसे उसके मकसद का जज्बा जगाने का हुनर रखता था। जब वो एक डील के दौरान शाहमीर से मिली तो लाशौरी तौर पर उसे सोचने लगी, लेकिन फिर वो बदनुमा दाग उसे उसका असल जुज़ू याद दिला देता था। उसने वापस हाल में कदम रखा। माजी की दर्दनाक तलखियों को याद करते वो इस पर सुलगती निगाह गाड़े खड़ी थी, जो सामने वाले का खून खुश्क कर गई थी। जैक ने बेसाख्ता अपनी उंगली के पुर से अपने आंसू साफ किए, जबकि जाजिब तो बाकायदा रो रहा था। मगर वहाँ एक और इंसान भी था जो ये सब कुछ सुनते सख्ते में जा चुका था। रही बात बालाज को अपने आदमियों से पैगामात, रात ही बालाज को अपने आदमी से ये पैगाम मसूला, जो कि बहुत हैरान कुन था। उसने हशर को बताया कि उसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। वो तो वैसे भी अपना सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ पर आए थे। बालाज अब सारी ज़िंदगी अपनी माँ के घर में गुजारना चाहता था। वो कोई इतना बड़ा माफिया नहीं था जिसके जाने से किसी को फ़र्क पड़ता। वो एक मामूली सा गैंगस्टर था और वो भी अपनों की साजिशों की बाइस ही बना था। इसके बाबा दुराब खान शेर खान के खालाजाद भाई होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उन दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीनें खरीदी, नया कारोबार शुरू किया। जवानी का दौर था, दोस्ती अपने अरूज पर थी। बालाज की माँ समीना खातून और सारा की वालदा जरीना खातून दोनों सगी बहनें थीं, इसलिए इनके दरमियान मरासम मज़ीद गहरे हो गए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ को सवाल होता है। ऐसे ही इनकी दोस्ती को भी सवाल होना था। इनका शुरू किया कारोबार दिन दुगना रात चुगना तरक्की कर रहा था। उस वक्त बालाज महज 15 साल का था जब पहली बार शेर खान के दिल में लालच उभरा। चूँकि कारोबार में ज़्यादा पैसा दुराब खान का लगा हुआ था, इसलिए मुनाफा भी ज़्यादा उनके हिस्से में आता था, जो कि इनका हक था। मगर ये बात शेर खान को खासा चुभ रही थी, पर वो खामोश रहे। आहिस्ता आहिस्ता दुराब खान को महसूस होने लगा कि शेर खान की नीयत में खोट पैदा हो रही है। इसी दौरान बालाज ट्रिप पर पेशावर गया हुआ था, जब दुराब खान ने खामोशी से अपना हिस्सा बेचकर लाल हवेली ख़रीद ली। लेकिन एक ज़मीन ऐसी थी कि जिसकी वजह से खान हवेली वालों से इख्तलाफात शुरू हो गए, जो वह ज़बानी कलामी तनाज़ात तक महदूद रहे। खैर, शेर खान को इसका सबका कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस लोगों के सामने अपनी अहमियत का तासुर कायम रखता था। वक्त गुजरता गया। बालाज 18 साल का हुआ तो दुराब खान ने इसे बेहतरीन तालीम के लिए मलाइशिया भेज दिया और यहाँ चालबाज को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। एक रात शेर खान ने अपने किसी पुलिस दोस्त के साथ मिलकर दुराब खान के अखरोट के कारखाने में रेड डलवा दिया, ये कह कर के वहाँ मंशियात का कारोबार हो रहा है। दर हकीकत वो एक दिन पहले ही वहाँ मौजूद अखरोट के कार्टन में मंशियात भरी थैलियाँ छुपा चुके थे, जो रेड तफ्तीश पर बरामद हुई। दुराब खान लाख चीखते रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ कर ले गई। कारखाना सिर्फ दुराब के नाम पर था, इसलिए शेर खान को मामले से दूर रखा गया। चंद दिन बाद वो ज़माने पर रिहा हो गए, लेकिन तब तक इनकी बदनामी हो चुकी थी और इनका कारखाना जब्त कर लिया गया। बालाज को इस सबसे लाइल्म रखा गया था। वो जज्बाती था, मामला बढ़ सकता था। दुराब खान इन सबको सह नहीं सके और ब्रेन हेमरेज हुआ, उनकी मौत हो गई। इस खबर ने बालाज को हिला कर रख दिया। वो भागा भागा वापस आया और अपने बाप की मैयत के साथ लिपट कर बेतहाशा रोया। समीना खातून भी अपने हमसफ़र की मौत का सदमा न सह सकी और हार्ट अटैक से वफ़ात पा गई। बालाज की दुनिया पल में उजड़ गई थी। 40वें तक तो शेर खान ने ज़ाहिरी तौर पर इसकी दिलजोई की, ताहम जैसे ही लोगों का ध्यान इनसे हटा,
वो इससे बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। बालाज को गांव वालों से मालूम हुआ कि इसका बाघ कैसे मरा। वो यकीन से कह सकता था कि ये झूठ है। वो मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहता था। उसने लाल हवेली बेचकर वापस जाना चाहा, लेकिन शेर खान ने कहा कि दुराब खान ने यह हवेली इन्हें बेच दी है। वो समझदार तो बहुत था, पर इतना नहीं कि शेर खान जैसी मकरूज सोच को पढ़ लेता। उसका अब यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए वो खामोशी से वापस चला गया। लेकिन अब हालात वैसे नहीं थे। वो एक एक पाई का मोहताज था। कॉलेज की फ़ीस देने के लिए वो रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। इसी दौरान उसे एक बच्चा मिला जिसे पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ बेचा गया था, और कुछ दिन पहले मालिक के मरने पर ख़ानदान ने घर से निकाल दिया। 13 साल वो बच्चा सड़कें फिरता, भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात इख्तियारी गैर में से एक ऐसे इंसान से जिसके माँ बाप या कोई रिश्ता नहीं था, उसे जैसे जीने का एक मकसद मिल गया। बालाज ने इसका नाम प्यार से अशर रखा, क्योंकि इसका बचपन में एक दोस्त था जिसका नाम अशर था, पर वो मर चुका था, जबकि असल नाम इस बच्चे का मनान था। वो दोनों ही साथ रहने लगे थे, दो अजनबी जो तकदीर के हाथों एक दूसरे के लिए पनाह बन चुके थे। वही होटल जहाँ बालाज पहले वेटर की नौकरी करता था, अब अशर भी वहीं इसका साथी था। मगर इस मामूली सी नौकरी का इनके इस महंगे दायरे में गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। अशर के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसकी हैसियत वहाँ गैर कानूनी थी। किसी भी वक्त किसी भी कोने से ख़तरा बरामद हो सकता था। लेकिन फिर भी वो दोनों दिन भर मेहनत करते। रात को थकन से चूर होकर एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में सो जाते। ये ज़िंदगी हसीन नहीं थी, लेकिन इन दोनों के लिए यही कुछ था। बालाज ने अपना ओ लेवल मुकम्मल कर लिया। वो पढ़ाई को तर्क नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो उस रास्ते से निकलने के लिए तालीम को वाहिद कुंजी समझता है। ज़िंदगी अपने शिकन आलूद रुख पर चल पड़ी थी। फिर एक दिन ऐसा है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिसंबर का महीना था। मलेशिया की खून खवाएं जैसे हड्डियों के आर पार हो रही थी। ऐसी सर्दी जो सिर्फ जिस्म ही नहीं रूह को भी जकड़ लेती है। बालाज सख्त बुखार में मुब्तला था। बिस्तर से उठना भी महाल था। अशर जो हमेशा इसका ख्याल रखता था, आज अकेला काम पर चला गया। बस थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगा भाई, तुम फिक्र मत करना। ये उसके जाने से पहले की आखिरी अल्फाज थे। रात का आखिरी पहर बीत चुका था। सूरज निकलने से पहले की गहरी खामोशी हर तरफ तारी थी, लेकिन अशर वापस नहीं आया। बालाज बुखार से टूटते वजूद को लिए उस एक कमरे के अपार्टमेंट से बाहर निकला। नकाहत ने उसके कदम कमज़ोर कर दिए थे, मगर अशर की गैर हाजिरी का ख्याल उसे सड़कों पर खींच लाया था। ठठरती सर्दी, मलेशिया की खामोश सड़कें और खाली रात, सब उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो पहले भी सख्तियाँ देख चुका था, लेकिन अब जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। इन चंद दिनों में अशर ना सिर्फ इसका हमसफ़र बल्कि उसकी तकलीफ़ का मदावा बन चुका था। उसकी मौजूदगी जैसे उजड़े दिनों में एक मानूस सा सुकून थी। बालाज थक हार कर उसी होटल के सामने एक सुनसान फुटपाथ पर बैठ गया, सर हाथों में थामे। पुलिस के पास जाना मुमकिन नहीं था। अशर की हैसियत वहाँ गैर कानूनी थी। तब इसकी निगाह सामने रखे एक बड़े से डस्टबिन पर पड़ी। उसने नज़रें फेर ली, लेकिन फिर कुछ था जो पलटने पर मजबूर कर रहा था। एक इंसानी हाथ जो कूड़े से बाहर निकला हुआ था। हाथ की उंगली में बंधी एक बारीक चांदी की तार, वही जो अशर पहनता था। इसका दिल हलक में आ गया। वो गिरते पड़ते पागलों की तरह डस्टबिन की तरफ लपका। होंठ कँपा रहे थे, आंखें अश्कबार थी। वो कचरा जो गीला और सड़ा हुआ था उसे अपने हाथों से हटा रहा था, जैसे किसी कीमती ख़जाने की तलाश में। और फिर वो दिखाई दिया। अशर, फटे होंठ, बंद सुर्ख आँखें, कमज़ोर बरहना वजूद और दरिंदगी की अजियत दास्तान उसके जिस्म पर रकम थी। बालाज के मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली। वो एक झटके से पीछे हटा। आंखों में खौफ था, दिल में तेज़ धड़कन और वजूद में लर्जा। कुछ देर सख्ते की हालत में बैठा रहा, फिर यकदम उठा। अपनी जैकेट और शर्ट उतार कर अशर के नहीफ जिस्म को ढांपने की नाकाम कोशिश की। कचरे की बदबू से एक लम्हे को भी महसूस ना हुई। वो सिर्फ उसे दुनिया से छुपाना चाहता था, इन दरिंदों से जो इस मासूम जान को नोच गए थे। इस लम्हे पूरी शिद्दत से रोया। बाप का साया, माँ की आगोश, और अब अपने भाई जैसे दोस्त पर टूटा जुल्म। वो जान गया था कि ये दुनिया मासूमों की दुश्मन है। वो भी तो एक लावारिस था। आज अशर के साथ ये हुआ, कल ये उसके साथ भी हो सकता था। उस रात बालाज के अंदर का दरिंदा जाग उठा, और एक ऐसा दरिंदा जो सिर्फ इन दरिंदों को मारता था जो इंसानियत के दुश्मन थे। अशर को खुद को संभालने में वक्त लगा, बहुत वक्त, लेकिन वो संभल गया। लड़कियां सह जाती हैं, ये माशरा कहता है। वो लड़का था, वो भी सह गया, लेकिन जो हर तरह से टूट चुका था। उसे सिर्फ एक सहारा था, बालाज। उसने अपनी छोटी सी दुनिया में एक भाई का दर्जा दिया। वो दोनों एक दूसरे का ख़ानदान बन चुके थे।
बालाज को तब तक ये मालूम नहीं था कि अशर के माजी में क्या दर्द छुपा था, लेकिन एक दिन जब अशर ने अपना हर ज़ख्म लफ्ज़ों की शक्ल में उसके सामने रख दिया, बालाज को लगा जैसे इसके अपने ज़ख्म हल्के हो गए हों। वक्त दोनों के ज़ख्मों पर बरहम बनता गया। बालाज ने अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दिया। गैर कानूनी दुनिया में कदम रखा ज़रूर, लेकिन तालीम के दरवाजे बंद ना किए। उसने कानून के आला तालीम मुकम्मल की और पाकिस्तान के कई मरूफ केसेस में हिस्सा लेकर ख़ुद को मनवाया। जब दौलत हाथ में आई तो उसने फ़ौरन वापस पाकिस्तान की तरफ तैयारी की। इन बरसों में शेर खान से कोई राब्ता ना रखा, लेकिन जरीना खातून से गाहे बगाहे बात हो जाया करती थी। इनके सामने कभी अपनी हालत ज़ार का जिक्र ना किया। दुराब खान का बेटा था, अपनी टूट फूट को दूसरों के सामने ज़ाहिर करना उसकी फितरत में ना था। ज़ारा से बरसों कोई बात नहीं हुई थी, बस इतना जानता था कि वो इसकी मंग है, लेकिन दिल में कोई जज्बा पैदा ना हो सका। शायद वो पत्थर बन चुका था। अब उसके दिल में सिर्फ जरीना खातून के लिए एहतराम था और बाकी सब के लिए खामोशी। अब बालाज के पास इतनी ताकत, वसाइल और समझ आ चुकी थी कि वो उस सच्चाई तक पहुंच सके। उसे इस बात पर मरते दम तक यकीन न आता कि दुराब खान जैसे दयानतदार इंसान को, जो उसका बाप था, मनशिया जैसे मकरूह धंधे में मुलव्वस किया जा सकता है। लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा था जो आंख बंद करके दूसरों पर एतबार कर लेता। अब वो कानून का तालिब इल्म, एक ज़ीरक इंसान और एक बदले की आग में जलता हुआ बेटा था। उसने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए वो तमाम दस्तावेज़ात और शवाहिद निकाल लिए जो इस वक्त पुलिस ने छुपाए या बदले थे। सच हमेशा छुपता है, लेकिन दफन नहीं होता, और जब सच उभरता है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। शेर खान से उसे अब शदीद नफ़रत हो चुकी थी। वो शख्स जिसने दुराब खान जैसे सच्चे दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, अब इसी चाल का शिकार होने वाला था। इब्तदा में बालाज का ख्याल था कि वो ज़रा से इसका बदला लेगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ज़ारा खुद हालात की चक्की में पिस चुकी है। उसे तो वनी कर दिया गया था। सफ़ीर खान भी कम जालिम न था, मगर वो सज़ारवार नहीं था इस जुर्म का जो शेर खान ने किया था। कहीं ना कहीं दुराब खान की दयानत और समीना खातून की परवरिश ने बालाज के अंदर का इंसान अभी ज़िंदा रखा था। इसलिए उसने शेर खान से वही खेल खेला जो उसने उसके बाप के साथ खेला था। चालाकी, सबूत, कानून और इंतकाम। यूँ अपनी वो तमाम ज़मीनें वो कानूनी तौर पर वापस लेने में कामयाब हो गया। मलाइशिया, उसकी तल्ख यादें, अशर के कचरे में पड़े वजूद का वो लम्हा और दर्द के वो सारे दिन, सब कुछ पीछे रह गया था। अब इसका मोरे इसका वतन था। अब वहाँ वो था, अशर था, और अपने वालिदैन की बेआवाज़ यादें। अशर को जब मालूम हुआ कि उसकी बहन जिंदा है तो वो किसी दीवाने की तरह रातों रात लंदन रवाना हो गया। वो नहीं जानता था कि ज़ैनब को 2 माह कबल ही पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया था। इसके पास जो इतलात थी उनके मुताबिक ज़ैनब का सुराग सिर्फ डाक हब से ही मिल सकता था। वो मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर वहाँ पहुँचा, मगर जो कुछ उसने वहाँ देखा, सुना और महसूस किया वो उसके वजूद को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी था। वो मंज़र, वो चेहरा, वो आवाज़, वो तो फ़ातिमा थी। फ़ातिमा, उसकी बहन, उसकी फ़ातिमा उसके सामने खड़ी थी। ये तो नाइंसाफ़ी ना हुई ना। हर किसी को ज़ैनब चाहिए, हर ज़बान पर सिर्फ ज़ैनब का जिक्र। क्या किसी को फ़ातिमा नहीं चाहिए? फ़ातिमा, बस यही पुकार थी जिसने सबको जैसे सख्ता कर दिया। ये पुकार सुनकर वो ठठक गई। चैक और जैसे भी चौंक कर इस सिमत पलटे। हाल के एक कोने में खड़ा एक नौजवान जिसके चेहरे पर मास्क था, आंखों में नमी लिए सिर्फ फ़ातिमा को देखे जा रहा था। फ़ातिमा से पहचान न सकी। चाज़िब फ़ौरन अलर्ट हुआ। उसने दावर को छोड़कर इस नौजवान पर गन तान ली। ये ज़रूर दावर खान का आदमी है, उसे यही लगा, मगर फिर चाज़िब रुको। ये हरम की आवाज़ थी जो बेख्तियार थी। अशर ने पलकें झपकी और एक आंसू जो ज़ब्त तोड़ चुका था इसके गाल पर बह निकला। फ़ातिमा की बेचैनी बढ़ गई। वो पलट कर उसकी सिमत कदम बढ़ाने ही वाली थी जब जैक ने फ़िक्रमंदी से इसका बाज़ा धोना। हरम मत जाना, हो सकता है ये किसी की चाल का हिस्सा हो। हरम ने जैक को महज एक इशारा किया और आगे बढ़ गई। हर कदम जो वो अशर की सिमत उठा रही थी, अशर के दिल पर गोया हथौड़े बरसा रहा था। वो उसके सामने थी, बरसों बाद उसके ख्वाबों की परछाई, उसकी मासूम फ़ातिमा, मगर ये वो फ़ातिमा नहीं थी। उसके चेहरे पर पड़ा गहरा ज़ख्म अशर की रूह को चीर गया। वो ज़ख्म सिर्फ इसकी जिल्द पर नहीं था, वो उसके बचपन की यादों पर था, उसकी उम्मीदों पर था। वो तो हमेशा से शफाफ, मासूम, नरम और नाजुक रही थी, मगर आज वही लड़की जिसे अपनी छोटी सी बहन समझता था, खून से रंगे हाथ लिए उसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? हरम, फ़ातिमा ने सख्त लहजे में कहा और उसकी पेशानी पर गन की नाल रखते उसकी आंखों में झांकने लगी। अशर की आंखों से बहता हुआ आंसू उसके अंदर किसी गहरी शनाख्त की गवाही दे रहा था, मगर हरम को वसवसों ने जकड़ रखा था। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। दिल और दिमाग की जंग चल रही थी। मेरी फ़ातिमा, मेरी बहन,
मैं हूँ तुम्हारा भाई मनान। अशर ने जल्दी से मास्क उतारा और हरजियानी कैफियत में लरसती आवाज़ के साथ बोला। उसकी ज़बान में कपकपाहट थी, आंखों में वो पहचान जो सिर्फ एक भाई की आंखों में हो सकती थी। हरम फातिमा का वजूद गोया ज़लज़ले की ज़द में आ गया। वक्त जैसे थम सा गया था। हाल में एक लम्हे के लिए ऐसा सकूत छा गया कि सांसों की आवाज़ भी तैरने लगी। पीछे खड़ा दावर खान, जो सबको आपस में मगन देख रहा था, इस खामोशी का मौका समझते हुए आहिस्ता से अपनी कमर के पीछे हाथ लग गया ताकि बंधी हुई गन निकाल सके, मगर जैक की बांधी हुई रस्सी ने इसके इरादे को फिलहाल नाकाम बना दिया था। हरम के हाथों में लर्जिश आ चुकी थी। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी, जैसे इसके जहन ने काम करना बंद कर दिया हो। इसके हाथ से गन छूटकर ज़मीन पर गिरी और जैसे ही वो धात फर्श से टकराई, उसकी गूंज ने हाल में फैले सकूत को तोड़ डाला। उसकी नाक से बहता खून उसके होंठों को रंगीन कर रहा था। वो कांप रही थी, लेकिन आंखें फिर भी अशर पर जमी हुई थी। हरम फातिमा। ये पुकार सिर्फ अशर की नहीं थी, जासिब जैक की भी आवाज़ें गूंजने लगी। लेकिन वो जो बरसों से ज़ख्म सहती आ रही थी, जो अंधेरों की आदी हो गई थी, आज भी खुद को संभाल गई। अशर जासिब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। जैक ने भी दावर को छोड़कर उनकी जानिब कदम बढ़ाए, मगर वो सिर्फ 2 कदम पहले जैक को हाथ के इशारे से रुकने का कह चुकी थी। महज 2 कदम का फासला। लेकिन दावर के लिए ये 2 कदम किसी नाम की मानद साबित हो सकते थे। फातिमा, तुम ठीक हो ना? अशर ने उसका चेहरा हाथों के प्यादे में भरते उसके गाल पर बने निशान को नम आँखों से देखते पूछा था। जासिब इसके साथ पहुंचकर भी नहीं पहुंच सका था। अशर उसके सामने उठ खड़ा हुआ था। वो दिल बर्दाश्त ना होते नज़रें झुकाए अपने कदम पीछे ले गया था। सामने खड़े मर्द से इसका खून का रिश्ता था और उससे सिर्फ नाम का। अशर इससे कुछ कह रहा था, पर हरम तो यकटुक उसके गले में बंधी डोरी देख रही थी, जो बहू उसके गले में मौजूद थी। अशरफ अपने हाथ से उसके नाक से बहकर ठोड़ी तक पहुंचते खून को पूंछ रहा था, पर खून था कि रुक ही नहीं रहा था। ये रुक क्यों नहीं रहा? अशर ने बच्चों की तरह रोते उसके नाक के पास हाथ रखते हुए कहा। हरम अभी उसके गले को देख रही थी। आंखों पर धुंध बढ़ती जा रही थी। शायद सालों पुराने नासूर पर मरहम रखने का वक्त आ गया था। वो खुद को तैयार कर रही थी कि अभी वो पूछेगा, फातिमा तुम कहाँ थी, कैसी थी, अब कैसी हो? एक कंधा जो उसे आज तक नहीं मिला था, आखिर मिलने वाला था, जिसमें चेहरा छुपाकर वो अपना हर गम भुला देती। जासिब, अशर की आवाज़ पर जैक ने जासिब को पुकारा, जो सर झुकाए खड़ा था। क्या उसे हरम की हालत नज़र नहीं आ रही थी, जो वो यूँ बत बन के खड़ा था? जैक की धाड़ पर जासिब हड़बड़ा कर होश में आया। फिर जैक की तरफ देखा, जो सुर्खी उतरे आंखों से ग़ज़बनाक अंदाज में उसे घूरा था। जी भाई। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा वो तकलीफ़ में है? कितना खून बह रहा है और तुम यहाँ सख्ते में खड़े हो। जय खुद आगे नहीं बढ़ सकता था, वरना वन लम्हा न निकालता इसकी दवा उसके मुंह में डालने में। हरम जैक की आवाज़ पर भीगा सा हंसी। वो इस इंसान को कैसे भूल सकती थी? वो मजबूर ना होता तो सबसे पहले सर झुकाए उसके आगे खड़ा होता। सॉरी भाई। जासिब जल्दी से बाहर की सिमत भागा और अगले ही लम्हे दवाइयों का बॉक्स पकड़े अंदर आया। एक एमरजेंसी बॉक्स हमेशा वो साथ रखते थे। ये पकड़ो आकर। जासिब को बॉक्स खोल कर नासमझी से दवाएं उलट पलट करते देखकर जैक ने उससे कहा, जिस पर वो अगले ही लम्हे नज़दीक आते दावर को काबू में कर लिया। जबकि नीली आंखों वाला नौजवान तेज़ी से सुरमई आंखों वाली लड़की की जानिब बढ़ता, बॉक्स में से मेडिसिन निकालता इसके मुंह में डाल गया। हरम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो चाहकर भी खुद दवा नहीं ले सकती थी। ये भी एक अलग ही बेबसी थी। इस सारे सानिया में अशर खामोश उससे 3 कदम के फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। उसे बेसाख्ता जैक से जलसी हुई। तुम अब ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हरम जैक को जवाब देती जल्दी से अशर के पास आई। भाई। उसके लहजे में क्या कुछ नहीं था, खुशी, एहसास, मोहब्बत। हाँ, एक बहन की मोहब्बत। वह झिलमिल करती आंखों से उसे देख रही थी। अशर ने आगे बढ़ते उसे साथ लगा लिया। वो इंतज़ार में थी कि वो अब पूछेगा, फातिमा मेहर बहन कैसी हो तुम? पर इसके तो लबों से कुछ और ही लफ्ज़ अदा हुए थे। फातिमा, तुम्हें पता है मुझे आप ही का पता चल गया है। तुम्हें पता है उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी हैं और वो अब भी कोमा में है। मैंने इन्हें ढूंढ लिया है। वो बिना रुके एक ही सांस में कहे जा रहा था, और फातिमा वो तो वहीं की वहीं रह गई। उसके जवाब ज़बान पर आने से पहले ही जहन में ही दम तोड़ गए। वो जो खुशी उसने महसूस करना शुरू की थी, वो तो जैसे दब सी गई थी। आंख में उमड़ते जज्बात ने दम तोड़ दिया था। क्या वो कुछ नहीं थी? उसका दिल भराने लगा। वो इसके सीने से लगी थी, पर वो इसका नहीं ज़ैनब का हाल बयान कर रहा था। वो जैसे संभलने से पहले ही बिखर गई थी। और आप ही? बस। वो मज़ीद कुछ कहता कि इससे दूर होती तेज़ आवाज़ में चीखी। अशर जो पुरजोश सा बोल रहा था, उसकी ज़बान गंग हो गई। आपके सामने मैं हूँ, ज़ैनब नहीं। किसी को मेरा दर्द नज़र क्यों नहीं आता? आपने देखा था कि ज़ैनब ने क्या सहा? क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या सहा है?
अरे कोई क्यों नहीं पूछता कि हरम फातिमा ने क्या कुछ फेस किया है। वो अपने बाल बुरी तरह नोचती हलक के बल चीख रही थी। उसकी आवाज़ में कर्म महसूस करते अशर सुन पड़ गया। जैक और जासिब अपनी जगह साकत रह गए। तावर खान ने बेजारी से ये सब देखा था। आपको पता है, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है और मैं खुद को हीरो लिखना पसंद करता है, लेकिन मैं ये बात कबूल करती हूँ कि अपनी कहानी का सबसे किरदार तो मैं हूँ। हरम फातिमा एक किरदार नहीं, नहूसत है। वो अपने अंदर के नासूर पर मरहम रखना चाहती थी, पर अब वो उसे नोच रही थी। सबको हरम फातिमा कब चाहिए होती है? तब जब किसी को इससे कोई काम होता है। वो आंखें मीचती कर्ब से हंसी थी। कोई एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे पूछो कि मैं क्या सहकर, क्या खोकर यहाँ तक पहुँची हूँ। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरती रोती हुई मध्यम आवाज़ में बोली। अशर के कदम संजीर हो चुके थे। वो नहीं जानते थे कि वो इसकी बात पर यूँ रिएक्ट करेगी। पता होता तो कभी ज़ैनब का जिक्र न करता। वो इसे मुंह के बल गिरा चुकी थी। क्या वो वाकई गलत कर चुका था? आपको पता है, मेरी रूह पे लगम ज़ख़म बहुत गहरे हैं। मैंने इन्हें सींच सींच कर रखा है। मैंने किसी को कहा था ज़ख़म है, जल्द ठीक हो जाएंगे। तो आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? वो उठकर खड़ी हुई, उसके नज़दीक आकर उसके सीने पर गाल टिकाया। उसने कहा, ज़ख़म तो ठीक हो जाते हैं, पर दाग तो रह जाते हैं, जो हमारे हिस्से में आए खसारे याद दिलाते हैं। मैंने इसकी बात पर गौर नहीं किया था, पर आज मुझे इसकी बात का मतलब समझ आया। अपने गाल पर हाथ रखते बिलखते हुए बोला। दफतन फिजा में गोली की आवाज़ ने इश्तियाल पैदा किया। कोई कुछ समझ पाता कि एक गर्म सुलाग सीधी सियाह लिबास में मलबूस लड़की की पुश्त में आकर पेवस हुई। उसके वजूद ने जोरदार झटका खाया। अशर ने आंखें फाड़े उसकी जानिब देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता फिसलती ढह चुकी थी। लम्हा लगा था सब बिखरने में। जैक ने दावर के हाथ से झटके से गन छीनी, वरना वो अगला फायर इस पर कर देता। वो छटपटाया, पर जैक इसके घर पर नाल मारकर इसको बेहोश कर चुका था। जाज़ब पिलर के साथ ही लगा ज़मीन पर बैठता चला गया। फातिमा, अशर जल्दी से पैरों पर दबाव दिए ज़मीन पर धप से बैठा। वो बिना किसी सिसकी और करा के आंखें मूंद चुकी थी। शायद वो इस ज़िंदगी से रिहाई पाने की मुंतज़िर थी, लेकिन क्या वो नहीं जानती थी कि कोई इसके पलटने के इंतज़ार में अपनी पूरी उम्र गुजार सकता है? सवात हज़ारा वसी और इस मैदान में एक बार फिर साल का दूसरा बड़ा जरगा बैठ चुका था। अदालत लग चुकी थी। चूँकि बारान 40 गांव का सरदार था, इसलिए उसके खिलाफ बैठने वाले जरगे में दूसरे बड़े बड़े गांव के सरदारान को बुलाया गया था। लाल हवेली से महज शेर खान और दिलशेर ही आए थे। शेर खान यूँ झुके कंधों के साथ बैठे थे। लाल हवेली से महज शेर खान और दिलशेर ही आए थे। शेर खान यूँ झुके कंधों के साथ बैठे थे जैसे सब कुछ हार चुके हों। जिस बेटे के लिए दौलत दाव पर लगाई थी, बेटी को वनी किया था, उस बेटे का खून में लथपथ चेहरा देखकर वो गोया सदमे में जा चुके थे। मलंगंजा नवाज, बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद उतरे बाल, सफ़ेदी उतरे बाल, वो जैसे आज अपना सब कुछ गंवाकर खाली हाथ रह गए थे। वहाँ मौजूद कुर्सियाँ यकायक भरती जा रही थी। इतना बड़ा जरगा गांव में दूसरी बार लग रहा था। इससे पहले कि यह जरगा शहजाद खान के कत्ल पर बैठा था, कुछ ही देर में धूल उड़ाती गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकी। कतार में एक के बाद एक लगती स्याह पराडों को देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। खामोशी का समा बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा थी। इन स्याह पराडों से एक एक करके तमाम खान हवेली के मर्द बाहर निकले। अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी नशिस्तों पर बराजमान होते रुबान खान ने हैदर खान की तरफ देखा। मूसा और सारून भी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे। सब ने छंबे से उनकी जानिब देखा। शामिर को जहाँ जाना था वो जा चुका था। उसने चीफ से बात की थी, पर चीफ नहीं माने, इसलिए मजबूरन उसे जाना पड़ा। आज पहली बार हैदर को शामिर के काम पर तैश आया था। वो इस वक्त सख्त परेशान था, लेकिन चेहरे के तासुरात को हद इम्कान तक नॉर्मल रखे हुए थे। फ़िक्रमंद तो हवेली का हर फर्द था। बात छोटी हरगिज़ न थी। अगर वो डेरा बारान के अलावा बाकी खान हवेली के किसी भी फ़र्द की दस्तरस में होता तो मसला इतना बड़ा न बनता। वो जानते थे जरगा पहली डिमांड ही कसास की वापसी का करेगा, जो कि बारान कभी नहीं मानेगा, और यही सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी की बात थी। और एक तरह से ये बात सही भी थी, पर फिलहाल उनकी समझ में बाहर थी। जरगा शुरू किया जाए। हाजी हफीज़ुर रहमान की आवाज़ पर सब इनकी तरफ मतवज्जो हुए। हाजी साहब, लेकिन अभी खान सरदार नहीं आया। वहाँ बैठे एक मोअज़्ज़ज़ आदमी की बात पर हफीज़ुर रहमान ने सवालिया निगाहों से रुबान खान और हैदर खान की तरफ देखा, जैसे बारान की गैर मौजूदगी के बारे में जानना चाहते हो। वो आ रहा है, आप अब जरगा शुरू करें। रुबान खान ने संजीदगी से कहा तो जरगे का आगाज़ बाकायदा किया गया। आज से 2 माह पहले, अक्टूबर 13 बरोज़ बुध दोपहर 1 बजे
शहजाद खान की लाश मुजरिम और चश्मदीद गवाह समेत पुराने पुल के करीब बरामद हुई। लाश के पास सफ़ीर खान नीम बेहोशी और नशे की हालत में हथियार समेत पाए गए। होश में आने के बाद सफ़ीर खान ने कबूल किया कि ये कत्ल उन्हीं के हाथों हुए और चश्मदीद गवाह अरमान दावर खान ने भी ये गवाही दी कि कत्ल होते उन्होंने खुद देखा है। इस मामले को मद्देनज़र रखते जिरगे ने शेर खान से खून बहा तलब किया। सूरत वनी या खून के बदले खून में शेर खान ने वनी को चुना और बेटी ज़ारा शेर खान नहीं, ज़ारा रुबान हैदर खान। वाक़या बयान करते मुनीम की बात बारान हैदर की भारी आवाज़ ने काटी। सबने बेसाख्ता मैदान में दाखिल होते बारान को देखा, जो कर्फ लगे शलवार सूट में मलबूस, कंधों पर स्याह शाल ओढ़े अपने पूरे जाहो जलाल से कदम उठाता आया और अपनी मखसूस नशिस्त यानी सरदार के तख्त पर जा बैठा। उसके आने पर हर फर्द खड़ा हुआ था और उसके बैठते ही सब बैठ गए। मुनीम जी, आइंदा ख्याल रखिएगा, वो ज़ारा शेर खान नहीं, सारा बारान हैदर है, आगे बढ़िए। बारान के सख्ती से कहने पर उन्होंने सर हिलाकर अदब से उसकी बात की तायद की और फिर अपनी बात वहीं से जारी की जहाँ से काटी गई थी। ज़ारा बारान खान यानी खान सरदार के निकाह में दे दी गई और सफ़ीर को आज़ाद कर दिया गया। तमाम हाज़रीन दम साधे इसकी बात सुन रहे थे। लेकिन कल रात 3 बजे खान डेरा से, जो कि सरदार की मुकम्मल दस्तरस में है, वहाँ से सफ़ीर खान की लाश बरामद हुई है। होलिया से साफ ज़ाहिर होता है कि इन पर सख्त तशद्दुद किया गया है। मुनीम ये कहकर खामोश हो गया। हाजी साहब ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फिरा और गहरी निगाह बारान पर डाली, जो सर पर दस्तार बांधे चेहरे पर किसी किस्म का तासुर सजाए बगैर बैठा था। इसका हल बताइए, उन्होंने संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। हल बहुत आसान है, अगर सरदार वनी वापस लौटा दें तो खून के बदले खून का कानून नाफिज होगा, यानी शहजाद खान के बदले सफ़ीर खान का खून। मुनीम की बात सुनकर मजलिस पर सख्ता तारी हो गया। खान कबूल कर लेते हैं मगर निकाह में दी गई औरत को वापस नहीं करते। हैदर खान ने बेसाख्ता रुबान खान की तरफ देखा। जिस बात का खदशा था वही हो चुका था। ज़ारून और मुसा ने बैक वक्त बारान की तरफ देखा, जो किसी गैर मरकज़ी नुक्ते पर नजरें जमाए बेहिस बैठा था। यह लम्हा हफीज़ुर रहमान के लिए भी परेशान कुन था। कोई और हल? हाजी साहब ने फिर से इस्तफसार किया। वो बुज़ुर्ग थे, उनकी बात मुकम्मल होने से पहले कोई मुदाखलत की जुर्रत नहीं कर सकता था। जी वो, मुनीम ने गला साफ़ करते सब पर निगाह डाली। मुनीम, हमने हल मांगा है। काफ़ी नागवारी से उसे घूरा गया। सरदार को सरदारी से बर्खास्त कर दिया जाए। ये अल्फाज होते ही महफिल में मौजूद हर शख्स गोया पत्थर का हो गया। ये कैसा कठिन इम्तहान था। सबकी निगाह बारान पर मरकूज़ हो गई। फैसला उसके हाथ में था, गद्दी या औरत। फ़िज़ा दम साधे इसके फ़ैसले की मुंतज़िर थी। ज़ारून ने मूसा को देखा, नज़रों ही नज़रों में सवाल किया, अब क्या होगा? फिर रुबान खान की तरफ निगाह दौड़ाई, जिनका चेहरा ज़ब्त से सुर्ख था। उनकी आंखों से खून बस टपक रहा था। वो सरदारी के लिए ना सिर्फ जान से दे सकते थे बल्कि जान ले भी सकते थे, क्योंकि उनके नज़दीक ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती शय इज़्ज़त थी। सरदार बारान हैदर, जवाब दीजिए, गद्दी या औरत? हफीज़ुर रहमान की आवाज़ में ठहरा हुआ जलाल था। बारान ने सुर्ख गोशे वालों आंखों से अपने बाप और ताया को देखा। दोनों नफ़ी में सर हिला रहे थे। हाजी साहब, क्या कोई रास्ता है? और बारान के लब खुलने से पहले ही हैदर खान बोल पड़े। हफीज़ुर रहमान ने उनकी तरफ देखा। वो बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। बारान इनका मान रखने वाला बेटा था, सो वो ये सवाल पूछने में हक बजानब था। मुनीम, उन्होंने एक और मौका दिया। वनी के बदले वनी, यानी सरदार की बहन को शेर खान के अहल खाना के हवाले कर दिया जाए। मुनीब ने सर झुकाए, हलक तर करते अल्फाज अदा किए। वो जानता था ये बात बहुत बड़ी है, उसकी शामत भी आ सकती है, मगर जिंदगी के फ़ैसले तो अक्सर ज़ालिमाना ही होते हैं। मूसा पर जैसे तेज़ाब का बेरहम से आल उंडेल दिया गया हो। वो तड़प उठा था अपनी ज़र का नाम सुनकर। वो उठने ही वाला था कि ज़ारून ने फ़ौरन इसका बाजू थाम लिया। सब्ज़ आंखों वाले मर्द ने गुस्से में गर्दन मोड़कर से आंखों वाले मर्द को देखा, जो खुद पर भी ज़ब्त के कठिन मरहले से गुजर रहा था। ज़ारून ने नफ़ी में सर हिलाकर मूसा को खामोश रहने का इशारा किया। मामला वैसे ही नाजुक था। मूसा का कोई भी रद्द में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकता था। बस, बारान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और गिर जा। ख़बरदार, अगर किसी ने अब किसी औरत का नाम इस जरगे में लिया, वो कोई आम लड़की नहीं, मेरी बहन है। और मेरी क्या, यहाँ की हर औरत हमारे लिए काबिल एहतराम है। बेहतर होगा अब किसी औरत का जिक्र न किया जाए। बारान की तंबीह भरी आवाज़ पर हाजी साहब मुस्कुराए। वाकई
وہ سرداری کے تخت پر بیٹھنے کے اہل تھا۔ سردار صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں، شروعات تو آپ ہی کے گھر سے ہوئی تھی۔ دلشیر کی تلخ بات نے زارون کو زمین میں گڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس پر آج بھی نادم تھا۔ زبان اکثر انسان کو زندگی میں ایک بار ضرور شرمندہ کرتی ہے، اور وہ شرمندگی تمام عمر ساتھ رہتی ہے۔ دلشیر، ہم یہاں موجود ہیں، حفیظ الرحمن کی آواز میں سختی تھی۔ باران حیدر، ہم آپ کے جوان کے منتظر ہیں۔ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ باران نے عاجزی سے حاجی صاحب کی طرف دیکھا۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ میں سردار باران حیدر خان، فرزند حیدر خان، سرداری سے برخاست کرتا ہوں۔ میں اپنی عورت کے لیے یہ گدی، یہ سرداری چھوڑتا ہوں۔ میرے لیے میری شریک حیات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ مجھے امید ہے کہ مجھ سے بہتر انسان اس گدی کو سنبھال لے گا، اور جو میں نے گاؤں میں اسکول کی بنیاد رکھی ہے اور پرانے پل کو توڑ کر نیا بنانے کا کام شروع کیا ہے، وہ سب جاری رہے گا۔ میں جیسے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا کرتا رہوں گا۔ باران نے بلند آواز میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا، پھر اپنی دستار اتار کر اونچی مستند کرسی پر رکھ دی۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی سردار نے اپنی عورت کے لیے سرداری چھوڑ دی تھی۔ ہزارہ کی فضائیں کتنی ہی دیر ساکت سی خاموشی سے ان سب کی جانب دیکھتی رہیں۔ شاید وہ ان کے رد عمل کی منتظر تھی، اور پھر ان خاموش فضاؤں نے باران کو اپنی پگڑی وہیں چھوڑتے نیچے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا حاجی صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر جھک کر ان کے ہاتھ عقیدت سے چوما، اور ان کے دادا کی عمر کے تھے وہ ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ حفیظ الرحمن نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی مسکراہٹ میں مثبت اثرات دیکھ کر اس کا دل پرسکون ہوا، یعنی وہ اس کے فیصلے پر مطمئن تھے۔ اس نے غلطی سے بھی روبان خان یا حیدر خان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ غصے میں ہے، اور ان کا غصہ بجا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ صحیح تھا تو وہ لوگ بھی اپنی جگہ درست تھے۔ دل اس کا بھی دکھا تھا کہ وہ اپنے باپ اور دایا کی خواہشوں پر پورا نہ اتر سکا، لیکن وہ اپنی بیوی کو کسی قیمت پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی دسترس میں اسے لیا تھا۔ پہلے وہ بے شک اس سے نفرت کے دعوے دار تھا، لیکن کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ ہاں، اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا جس پر شاید وہ ساری زندگی پشیمان رہے گا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن آج وہ بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ترچھی نگاہوں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ زارون اور موسیٰ اسے دیکھ کر ہلکا سا سر خم کر گئے۔ وہ یکدم سرسار ہوا۔ ہاں، اس کے بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کیا بھائیوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حفیظ الرحمن نے حیدر خان اور روبان کی جانب دیکھا، جہاں حیدر خان آنکھوں میں افسوس اور غصہ لیے باران کو دیکھ رہے تھے، وہیں روبان خان خاموش اسپاٹ چہرہ لیے نگاہیں زمین پر گاڑے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں زمین کو گھور رہی تھیں، اس لیے وہ ان کی آنکھوں کا حال جاننے سے قاصر رہے۔ ماحول کی سنگینی دیکھتے انہوں نے فی الحال جرگے کو یہیں برخاست کرنا مناسب لگا۔ انہوں نے اپنی شال جھٹکی، اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر سبھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، پھر گلا کھنگار کر اپنی بات شروع کی۔ جیسا کہ واضح ہے کہ باران حیدر اپنی گدی چھوڑ چکے ہیں۔ اس ایک جملے پر ایک پانی کا قطرہ جو خان کی آنکھ سے نکلا، خشک زمین پر جذب ہو گیا۔ سب کھڑے ہو چکے تھے، پر وہ بیٹھے تھے اسی حالت میں۔ حاجی صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، حالانکہ یہ خلاف ادب تھا، لیکن معاملہ بہت نازک تھا، انہیں چھیڑنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے یہ گدی خالی ہو چکی ہے۔ یہ کب کس کو دی جاتی ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن بے فکر رہیں، اس کا جو حقدار ہوگا یہ اسے ہی ملے گی۔ اور چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اس جرگے کو برخاست کرتے ہیں۔ حفیظ الرحمن کی خالص پختون میں کہی گئی بات کو سب نے بغور سنا۔ دلشیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہ سوچ رکھا تھا کہ زارا واپس مل جائے گی، جسے وہ بالاج کے حوالے کر کے اپنی زمینیں حاصل کر لے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ شیر خان نے کئی بار بیچ میں کچھ کہنا چاہا، پر دلشیر نے انہیں بولنے نہ ہی دیا۔ اب ان کے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا تھا۔ جرگے کے فیصلے واقعی بہت ظالم ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی؟ رکیے حاجی صاحب، آپ نے سب کا فیصلہ کر دیا، اب مجھ پر بھی ذرا نظر ثانی کر دیجیے۔ حفیظ الرحمن کی بات اختتام پذیر ہوتا ہی وہاں کسی کی پرسوز آواز گونجی۔ اسی آواز پر سب ٹھٹک گئے، حتیٰ کہ باران جب باہر جانے ہی والا تھا وہ بھی رک گیا۔ سبھی اس آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ آواز اس بھیڑ میں سے آئی تھی جو جرگے کا فیصلہ سننے کے لیے گاؤں کے لوگ آئے تھے۔ اس بھیڑ کو چیرتا ایک نوجوان نمودار ہوا۔ سفید ٹی شرٹ، لیونڈر رنگ کی پینٹ میں ملبوس وہ نوجوان بہت منفرد نظر آ رہا تھا۔ پیڈڈ جیکٹ، اسٹائلش بال، ذہین آنکھیں اور ہلکی بیئرڈ، واقعی یہ علاقے کے مردوں میں بہت مختلف تھا۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا حفیظ الرحمن کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اسے اپنی تھوڑی سی اونچی مستند سے دیکھ رہے تھے۔
کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی تھی، کچھ کی میں اجنبیت نے جگہ لی۔ باران، زارون اور موسیٰ بھی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے، تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ سوال سب کی آنکھوں میں تھا، لیکن حفیظ الرحمن کی زبان سے نکلا تھا۔ پہچان میں کیا رکھا ہے حاجی صاحب؟ وہ میں بعد میں کرا دوں گا، پہلے میرا مسئلہ سنیے، نوجوان نے سکون سے کہا۔ بتاؤ، ایسا کیا مسئلہ ہے تمہارا جو تم نے بیچ جرگے میں دخل اندازی کی؟ نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ میرا فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس کی گواہی آپ دیں گے؟ یہ سوال تھا یا کوئی چیلنج؟ حاجی صاحب کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا۔ واقعی انہوں نے اس سوال کو ایک چیلنج کے طور پر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نشست پر تنبیہ سے قبض قابو کیا، باقی لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جرگہ ایک بار پھر اب کچھ نئے انداز میں شروع ہو چکا تھا، سب کی سوچ کے خلاف۔ میرا نام بالاج خان ہے، تراب خان کا بیٹا اور ضمیر خان کا پوتا۔ وہ بولتے بولتے رکا اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ تراب خان اور ضمیر خان کو جانتے ہیں نا؟ یہ سن کر حفیظ الرحمن کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے اور انہوں نے مکان کی انداز میں سر ہلایا۔ ضمیر خان حفیظ الرحمن اور جہانگیر خان بچپن کے دوست تھے، لیکن شادیوں کے بعد سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ حفیظ الرحمن کے والد کسی دوسرے گاؤں کے سردار تھے، وہ وہاں سرداری کے وارث بنے، جبکہ ہزارہ میں یہ مقام جہانگیر خان کو ملا۔ اگر یہ دستار جہانگیر خان کو نہ ملتی تو شاید ضمیر خان کو مل سکتی تھی، لیکن انہیں سرداری میں کوئی دلچسپی نہ تھی، تو یہ دستار ان کے خاندان میں نسل در نسل چلنے لگی۔ بالاش نے ان کے سر ہلانے پر خم کیا اور اپنی بات جاری کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جہانگیر خان نے وصیت کی تھی کہ کبھی ان کے خاندان کو اس دستار یا گدی سے دستبردار ہونا پڑا تو اسے ضمیر خان کے خاندان کو سونپ دیا جائے گا، اگر وہ اس کے اہل ہوں۔ یہ سن کر محفل میں خاموشی چھا گئی، ہر ایک نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ باران کو اس بات کی منطق سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ حیرت میں تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ وہ زارون اور موسیٰ کے ساتھ نشست پر موجود تھا جب اچانک ٹھٹکا۔ ربان خان اور حیدر خان وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں ابھری۔ وہ کہاں گئے؟ کیا وہ حویلی چلے گئے؟ وہ تیزی سے اٹھا، موسیٰ اور زارون بھی اس کے پیچھے اٹھے کھڑے ہوئے۔ اس کے قدموں نے باہر کا رخ کیا۔ ہاں، وہ یقیناً حویلی گئے تھے، اور ربان خان کے غصے سے کون نہ واقف تھا۔ اگر حیدر خان پانی تھے تو ربان خان آگ تھے، ایسی آگ جس میں بھڑکتی چنگاری آج سے 35 سال پہلے خان حویلی والوں نے دیکھی تھی، جب جہانگیر خان نے ربان خان کی پسند کو رد کر دیا تھا۔ ہبا خانم اور ربان خان کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ وہ ربان خان کی منگیتر تھیں، لیکن جب رشتے کی بات کھلی تو ربان خان نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو پہلے اپنے تایازاد زوبیہ خانم کو پسند کرتے تھے۔ ایک وقت ہبا کی عمر 20 سال اور زوبیہ کی 16 تھی۔ جب یہ خبر جہانگیر خان تک پہنچی تو وہ بھڑک اٹھے۔ وہ کیسے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی کو چھوڑ کر بڑے بھائی کی بیٹی کو مانگ سکتے تھے؟ لیکن ربان خان اس وقت کہاں کچھ سمجھنے والے تھے۔ یہ بات ہبا خانم تک پہنچی تو وہ حد تک کے احساس سے بلبلا اٹھی۔ انہیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ ربان خان کی دلہن بڑھ کر گاؤں کے سردارنی کہلائیں گی۔ ان دنوں حویلی میں بہت ہنگامے ہوئے، لیکن ربان خان نے سب مخالفتوں کو رونتے ہوئے زوبیہ خانم کو اپنا لیا۔ آخرکار جہانگیر خان نے بھی ہار مان لی۔ وہ زوبیہ خانم کے ساتھ برا سلوک کرتے تو نہیں کر سکتے تھے، بہرحال وہ بھی تو ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی۔ ان دنوں جہانگیر خان کے چھوٹے بھائی یعنی ہبا خانم کے والد بدزن ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ہبا خانم کا نکاح 17 سالہ داور خان سے کروا دیا۔ حالانکہ ہبا 20 سال کی تھی۔ حیدر خان نے تو پہلے ان کی بہن کی بیٹی کے منگیتر تھے۔ ہبا خانم نے احتجاج کرنا چاہا، مگر باپ کے جڑے ہاتھوں نے ان کی زبان روک دی۔ یوں وہ داور خان کے نکاح میں آ گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ داور خان کو وہ بالکل نہیں پسند کرتی تھیں، کیونکہ وہ ان سے بڑی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی انہوں نے رخصتی نہیں لی، ایک ہی حویلی میں رہتے۔ وہ دن رات زوبیہ خانم ربان خان کو دیکھتی رہتی اور کڑتی رہتی۔ پہلے ایسے کمتری، پھر حسد، اور آخر کار نفرت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہانگیر خان کی وفات کے بعد جب داور خان کے چچا پر آخری وقت آیا تو مجبوراً وہ رخصتی پر آمادہ ہوئے۔ کچھ حیدر خان کے سمجھانے کا اثر تھا کہ وہ مان گئے، لیکن رخصتی کے بعد بھی ان کا رویہ نہ بدلا۔ ہبا خانم کے اندر کی ساری خواہشات اور خواب خاک ہو چکے تھے۔ وہ اپنے باپ کے غلط فیصلے پر جیتی اور روز مرتی تھی۔ وہ صاحب اولاد ہو چکی تھی، لیکن داور خان کے خون سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ البتہ سائرہ سے وہ انس رکھتی تھی، کیونکہ اس میں انہیں اپنی جوانی دکھتی تھی، جسے خاندان کی روایات نے ڈھونڈ ڈالا تھا۔ وہ خود سے اکثر پوچھتی، کیا ربان خان دنیا کے آخری مرد تھے
کہ ان کے انکار پر انہیں کسی کے بھی ساتھ باندھ دیا گیا؟ انہوں نے ہر وہ چیز زارا پر آزمائی جو کبھی داور خان نے ان کے ساتھ کی تھی۔ حقیقی معنوں میں وہ ایک وکٹم تھی، مگر وقت بیت چکا تھا، اب وہ صرف ایک حاسد عورت رہ گئی تھی۔ خیر، اگر ہم ایک بار پھر میدان جرگہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ باران وہاں سے نکل چکا ہے، موسیٰ اور زارون بھی ان کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے تم کون ہو، بتاؤ اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ حفیظ الرحمن باران کی پہچان جاننے کے بعد سوالیہ انداز میں گویا ہوئے۔ وہ بچے نہیں تھے کہ اس کا مقصد نہ سمجھ پاتے، مگر اس کی زبان سے سننا ضروری تھا۔ سیدھی بات ہے حاجی صاحب، خان حویلی والے اس گدی سے دستبردار ہو چکے ہیں، اس لیے اب آفیشیل اس گدی کا حقدار میں ہوں۔ ذہین و زیر آنکھوں والے اس نوجوان کی بات وہاں بیٹھے کئی لوگوں کو برچھی کی طرح چبھی، خاص طور پر دلشیر کو۔ لڑکے، تم بھول رہے ہو، تمہارا باپ ایک فراڈ آدمی تھا جس کی کوئی عزت نہیں تھی، نہ اس کے پاس ایسی زمین تھی کہ تم اس گدی کے لیے حسب نفس کے قابل سمجھا جائے۔ یہ بات وہاں موجود بلال نامی آدمی نے کہی جو دوسرے گاؤں کا سردار تھا۔ بلال سب کچھ سن سکتا تھا پر اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں۔ اس کا خون کھول اٹھا، آنکھیں تیزی سے سرخ ہوئیں، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ زبان کو لگام دو بلال کیسر خان، ورنہ یہی زبان حلق سے کھینچ کر گدی پر لپیٹ دوں گا۔ اس کی کاٹدار آواز خاصی اونچی تھی۔ ایک لمحے کو بلال گڑبڑا گیا، لیکن وہ بھی سردار تھا، خاموش کہاں رہ سکتا تھا؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ حفیظ الرحمن کی سخت طبی کرتی نظروں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ حاجی صاحب، سمجھا دینے، جب تک آپ اور میں ہم کلام ہیں کوئی بھی اپنی ٹانگ بیچ میں نہ اڑائے، ورنہ خون مجھ میں بھی خانوں کا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں مگر الفاظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا جیسے اپنے اصل مدعے سے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔ شیر خان خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ وقت نے انہیں بری طرح مارا تھا۔ ان کے گناہوں کی سزا ان کے اس اولاد کو ملی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ لڑکے، تم اپنی بات مکمل کرو، حفیظ الرحمن نے سنجیدگی سے کہا تو بالاش نے گہرا سانس بھرا اور سر ہلایا۔ خان حویلی کا ہر فرد وہاں سے جا چکا تھا جنہیں روکنا کسی نے بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ حاجی صاحب، اس گدی کا حقدار میں ہوں، زمینیں الحمدللہ میرے پاس ہیں، وہ بھی میرے اپنے باپ کی، میری اپنی پہچان بھی ہے، میں ایک قابل وکیل ہوں اور ہر طرح کے داو پیچ سے واقف، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ بالاش نے پورا اعتماد انداز میں کہا اور آخر میں سوالیہ نگاہیں سب پر گاڑ دیں۔ حفیظ الرحمن نے پرسوچ نظروں سے بالاج کو دیکھا۔ وہ نوجوان جو اتنے لوگوں کے سامنے بے جھجک اپنے حق کا دعویٰ کر رہا تھا، سب کچھ خاموشی سے دیکھتے ہوئے عبد الرحمن نے اپنی نشست سے اٹھ کر حاجی صاحب کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے پشتو میں کچھ کہا۔ ابا جی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دراف خان نے کیا تھا، کیا اس کے بعد بھی یہ لڑکا گدی کا حقدار بن سکتا ہے؟ گاؤں کی گدی کوئی عام زمین نہ تھی جو کوئی بھی یوں حق کا دعویٰ کر کے حاصل کر لیتا۔ حفیظ الرحمن نے بھی ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، پھر بالاج پر۔ سردار کی گدی کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج تک انہوں نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو نہیں دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ لڑکے، دراف خان کی اصلیت جانتے ہو؟ جس طرح وہ اپنے باپ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھا، اسے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید وہ ماضی سے ناواقف ہے۔ بالاج کے چہرے پر سخت برہمی کے آثار تھے، جیسے وہ خود پر قابو پا رہا ہو۔ جی بالکل جانتا ہوں، اور بے فکر رہیں، ابھی اسی وقت میں اپنے بابا کے نام پر لگا وہ برسوں پرانا داغ صاف کروں گا، جس کی بنیاد پر آپ سب نے ان پر حقارت بھری نظریں ڈالیں۔ بالاج کی اس بات نے سب کچھ چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس نے فوری طور پر اپنے فون سے کسی کا نمبر ملایا۔ لے آؤ، مختصر الفاظ میں کہہ کر اس نے کال منقطع کیا اور سب کی طرف دیکھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، خاص طور پر شیر خان۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک وردی میں ملبوس درمیانی عمر کا شخص ایک تقریباً 40 سالہ آدمی کو ہتھکڑیاں لگائے گھسیٹتا ہوا میدان کے بیچ لایا اور زمین پر پھینک دیا۔ بالاج کی نظریں شیر خان پر ٹک گئی جن کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ایک مردہ جسم کی مانند لگ رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس آدمی کو پہچانتے ہوں۔ بالاج نے ان کی جانب سے نظریں ہٹا کر اپنی نشست چھوڑی اور اس آدمی کے قریب پہنچا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا۔ اس شخص کی کرا بے ساختہ نکلی۔ تم منہ کھولو گے یا میں کھلواؤں؟ وہ برہمی سے بولا اور اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ حفیظ الرحمن نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ یہ کسی سے سوال کرنے کا طریقہ نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، اس رمیز نامی آدمی کی آواز گونجی، اور ایسا انکشاف ہوا کہ صرف وہی نہیں، ہر فرد حیرت اور بے یقینی سے کھڑا ہو گیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے دراف خان کے کارخانے میں وہ اخروٹ کے باکس رکھنے کا شیر خان نے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان اخروٹ سے بھری پیٹی میں منشیات کے بھرے اخروٹ ہیں۔
दुराब खान ने कुछ नहीं किया था, वो तो बहुत अच्छे थे। इन्हें शेर खान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तेज़ी से अपनी मकामी ज़बान में बोल रहा था। उसकी आवाज़, उसका लहजा और आंखों में तैरता खौफ, ये सब कुछ सिर्फ एक ही बात की गवाही दे रहा था कि वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था। एकदम वहाँ की फ़िज़ा में घुटन फैल गई, चमकोइयाँ बढ़ने लगीं, लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ करने लगे। शेर खान का हाल ऐसा था जैसे काटो तो लहू नहीं। हफीज़ुर रहमान की आंखों में और वहाँ मौजूद हर फर्द की आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सच है? क्या जो अभी सुना वो वाकई सच है? क्या दुराब खान वाकई बेगुनाह थे? सबकी बोलती निगाहें खामोश और पसमुर्दा चेहरा लिए शेर खान पर जमी हुई थी, जो गले पर हाथ रखे इस घुटन भरी फिजा में सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे किसी ने इनकी गर्दन पर पाँव रख दिया हो। सांस रुकी हुई, ज़बान गंग, आंखों में शर्मिंदगी की एक तबीज़ तह। शेर खान की हालत ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। उनके तरबतर होते वजूद को अल्फाज की ज़रूरत नहीं रही थी, और फिर सच तो छुपता ही नहीं। अब सरगोशियाँ बुलंद हो रही थी, सच खुद ब खुद खुलने लगा था। दिलशेर ने सब देखा कि अब शेर खान से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता, तो वो भी 2 कदम पीछे हटकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ज़हीन आंखों वाला नौजवान बस एक तरफ खड़ा इस शख्स की ज़िल्लत देख रहा था, जिसने इसके बाप की इज़्ज़त खाक में मिलाई थी। आज उसने अपने बाप की इज़्ज़त का बदला ले लिया था। जब इज़्ज़त पर वार हो तो सामने वाले को चीर देना हक बन जाता है। अब महान को सूली पर चढ़ाने का वक्त आ चुका था। इस कहानी का एक और बाब किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुका था। जरगे के फ़ैसले वाकई बहुत सख्त होते हैं।